Hello, good morning all of you. Now today's topic is mechanism of nucleophilic substitution reaction. But what is the nucleophilic substitution reaction? So the nucleophilic substitution reaction is that reaction in which one nucleophile is substituted by another nucleophile. Okay, one nucleophile is substituted by another nucleophile means in the nucleophilic substitution reaction this of the alkyl halide this halide group get detached from the alkyl and new bond formed between the nucleophile and the carbon atom of the alkyl group means the R and U. Okay, but in this case this halogen group get detached by taking the two electrons of this sigma bond. Okay, so no doubt in this case this halogen group it is called as the leaving group है ये leaving group means in this nucleophilic substitution reaction there is a breaking of CX bond means halogen group get detached from the carbon atom of the alkyl group and new bond which is formed between nucleophile and the electrophilic carbon atom of the alkyl group by using the two electrons of the nucleophile means in this case breaking and formation of the bonds there takes place in the substrate means in the substrate there are two changes they are carryouts. Okay, and these two changes are the breaking of the CX bond means heterolysis of the CX bond and the formation of new bond between the nucleophile and the electrophilic carbon. Okay, electrophilic carbon. But these changes may occurs in one step or the several steps. ये जो changes यहाँ पे होने वाले हैं टाइम changes breaking और जो भी formation हुआ ये one step में या two step में हो सकता है. So this description regarding the sequence and manner जो है ways in which these type of the changes that takes place in the nucleophilic substitution reaction ये जो description होगा काय के बारे में breaking of the CX bond and formation of the new bond means carbon और nucleophile इसका जो description है it is called as the mechanism. It is called as the mechanism. So the mechanism it is nothing but the sequence or the manner or the ways in which such a type of the changes they are takes place in the nucleophilic substitution reaction. But these changes may occur in single step or the several step means no doubt in this case the mechanism of the nucleophilic substitution reaction are of two type. They are means mechanism it is carried out in two ways means the first way is the unimolecular nucleophilic substitution reaction means SN1. Okay, means nucleophilic substitution reactions are of two types.
whether this reaction it is carried out in one step or the several step, या किस तरह से यहाँ ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होगा, on the basis the nucleophilic substitution reactions ये दो होगी, एक यूनिमोलिकुलर होगी. Now in this case S stand for the substitution, okay, and stand for the nucleophilic, and one stand for the unimolecular, means first order, means the first order nucleophilic substitution reaction. Okay, so unimolecular nucleophilic substitution reaction, and second one is the bimolecular nucleophilic substitution reaction, means SN2. No doubt in this case S stand for the substitution, N stand for the nucleophilic, and the 2 stand for the bimolecular, means second order nucleophilic substitution reaction. Okay, now first of all we will discuss the mechanism of the bimolecular nucleophilic substitution reaction. So the SN2 reaction mechanism, SN2 reaction mechanism. Now the example of this SN2 reaction mechanism is the hydrolysis of alkaline hydrolysis of primary alkyl halide. Okay, primary alkyl halide means CH3Br plus nucleophile OH nucleophile. Then in this case there is a formation of the CH3OH plus Br. ये ल्यू करेगा after taking the 2 electrons of the sigma bond. No doubt in this case this Br it is a leaving group, so Br negative containing 2 lone pair, correct, 2 lone pair electrons. Now it is the example of the SN2 reaction. But why it is the example? Why the primary alkyl undergoes primary alkyl halides they undergoes the SN2 reaction mechanism? इसके रीजन अपन धीरे धीरे इसके बाद में क्लियर करने वाले हैं. But why this reaction it is a SN2? So this calculation जो है it can be explained on the basis of the kinetic theory. ठीक है, chemical kinetics पे से. So practically it is observed that practically क्या experimentally it is seen that the rate of this reaction, hydrolysis reaction, okay, hydrolysis reaction इसलिए बोला because Br it is replaced by the OH, so it is hydrolysis. Then rate it is directly proportional to that of the concentration of the substrate, means CH3Br as well as the nucleophile. Okay, now in this case this rate of this reaction it is directly proportional to that of the concentration of the substrate and the nucleophile. Okay, so the rate is equal to K, proportionality constant, rate constant, CH3Br OH negative, correct. So in this rate law the power of this concentration is 1, and in this case also 1. So the order of reaction
it is 2 means it is a second order, means it is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. ये काय पे से अपन ने बोले, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पे से बोले। इसका काइनेटिक क्या बोलता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, this rate of this reaction, it is depend upon the concentration of both reactant means substrate as well as the nucleophile. Means when the concentration of these both increases or decreases, there is a change in the rate of the reactions. Okay, तो इसमें से अपन ने ये बोला कि no doubt it is the example of the बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सारे जो है कैलकुलेशंस है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, उसके ऊपर से हमने इसका SN2 मैकेनिज्म मींस ये जो एग्जांपल है इट इज द SN2 मैकेनिज्म का। नाउ मैकेनिज्म क्या होगा? ओके, इसका वेज फार्मूला लेते हैं। Methyl bromide. Now in this case Br, it is a more electronegative, no doubt it carries the partial negative charge and it carries the partial positive charge. Inductive effect यहाँ पे डेवलप होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो यहाँ पे होना ही है। मींस ये पोलर बॉन्ड को तैयार करेगा, पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप होगी। प्लस OH negative containing 2 electrons, containing 2 electrons, स्लो रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल होगा। ओके, स्लो रिएक्शन। नाउ इन दिस केस देयर इज अ heterolytic fusion, means fusion of the CBr bond takes place। ये CBr बॉन्ड ब्रेक होगा, बट इन दिस केस दिस OH attacks to this primary carbon, attacks to this primary carbon from the backside. Why there is a backside attack of the nucleophile to the primary carbon? So reason is that already there is a Br leaving group containing the negative charge having a same charge on the front side। इसलिए ये जो OH होगा ये इस कार्बन को अटैक करेगा, अटैच होगा, ये बैक से फ्रंट से ऑलरेडी देयर इज अ Br नेगेटिवली चार्ज, जिसके कारणवश यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो होगा, स्टेरिक रिपल्शन भी यहां पे होगा। जब ये OH इसको अटैक करेगा तब यहां पे एक इंटरमीडिएट तैयार होगा। OH। now these 3 bonds they are perpendicular to this axis OHC Br axis, and this intermediate it is called as the transition state, it is called as the transition state। यहाँ पे तैयार होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लिविंग ग्रुप और क्या इनकमिंग ग्रुप जो होगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ओके, अब इन दिस केस दिस ट्रांजिशन स्टेट, यानी आपको मालूम है कि ऐसी स्टेज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, एंड एट दैट स्टेज देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके,
that is called as the transition state. Okay, in this transition state, these group means the living group and the nucleophile, they are partially attached to this carbon. Means in this carbon it is penta coordinated है. कैसा है? पेंटा कोऑर्डिनेटेड होगा. ये पार्शियली अटैच इसको होना है. और ये तीनों बॉन्ड्स जो है दे आर लाई इन वन प्लेन बट दे आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस. परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस. ओके, नाउ इन दिस केस समझो यहां पे कि सपोज यहां पे एक ग्रुप बल्कियर होते तो यहां पे स्टेरिक हिंडरेंस होता. स्टेरिक हिंडरेंस होता जिसके कारणवश यहां पे ये ट्रांजिशन स्टेट को तैयार करने में दिक्कत जाती. ओके, सो नो डाउट कि SN2 समझो रिएक्शन में लेता हूं तो ये बल्कियर मींस बल्कियर ग्रुप्स यहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बल्कियर ग्रुप समझो होते हैं तो यहां पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्या ट्रांजिशन स्टेट. मींस नो डाउट कि SN2 रिएक्शन जो होगी फेवर्स दी किसको फेवर करेगी? प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स को फेवर करेंगे, यानी लेस हिंडर्ड ग्रुप्स जो रहेंगे, लाइटर ग्रुप्स जो रहेंगे, ताकि इजीली यहां पे ट्रांजिशन स्टेट को वो क्या कर सके? तैयार कर सके. ओके, इफ दिस CBr बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है देन नो डाउट कि COH बॉन्ड ये कंप्लीटली तैयार हो जाएगा. तैयार होने के बाद in this case there is a formation of the product. Okay, means H ओके. अब यहां पे अपने को प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है कि देयर इज ए इन्वर्शन ऑफ द बॉन्ड. करेक्ट, देयर इज ए इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिखता है. क्यों? कि OH ने क्या किया है कि इस कार्बन को, प्राइमरी कार्बन को जो अटैक किया है वो कहां से? बैक साइड से किया है, अपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप से किया है, क्योंकि फ्रंट से ये अटैक नहीं कर सकता था. ऑलरेडी on the front side there is a Br having the same charge, means negatively charged. So this Br जो है repels the OH nucleophile को repel करेगा. कहां से? फ्रंट से, due to which OH attacks from the back side. दूसरी बात, यहां समझो ये बल्कि ग्रुप्स अटैच होते तो स्वाभाविक है ये OH इसको हटाने में असक्षम होता. मींस यहां पे अवर हिंड्रेंस होता बल्कि ग्रुप के कारणवश. सो नो डाउट कि यहां पे इन दिस केस क्या होना चाहिए? लाइटर ग्रुप्स होना चाहिए. सपोज ये मिथाइल होते तो शायद ये वाली स्टेप यहां पे क्रिएट नहीं होती. करेक्ट. सो OH अटैच टू द प्राइमरी कार्बन फ्रॉम द बैक साइड, ड्यू टू व्हिच यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशंस है तीनों के तीनों जो बॉन्ड्स है ये क्या हो गए? रिवर्स हो गए, मींस इनवर्स हो गए. सो इन दिस केस इन्वर्शन ऑफ द बॉन्ड्स टेक्स प्लेस. Inversion of the bond takes place. अब if the SN1 reaction it is carried out at the chiral carbon of the optically active. Suppose ये optically active होता है, अब ये तो optically inactive है, but ये समझो chiral carbon होता और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो होता तो स्वाभाविक है उससे होने वाला जो प्रोडक्ट रहता ये क्या होता? लिवो रोटेटरी होता. मींस इट इज कॉल्ड एज द इन्वर्शन. इट इज अ 100% इन्वर्शन. ओके, डेटा 100% इन्वर्शन इट इज कॉल्ड एज द वाल्डन इन्वर्शन बोला जाता है इसको. वाल्डन इन्वर्शन कब? जब यहां पे ये जो है अल्काइल हैलाइड ये ऑप्टिकली एक्टिव होता तो कायरल कार्बन यहां पे समझो होता तो नो डाउट जो प्रोडक्ट तैयार होने वाला था वो कौन सा होता? इन्वर्टेड होगा. 100% इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन है. यहां सिंपली आपको समझ में आता है कि ये बॉन्ड इस साइड में है, बट इन केस ऑफ द प्रोडक्ट दे आर
इन अपोजिट डायरेक्शंस में है. सो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द आरडीएस है. ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है. रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इन्वॉल्व इन द डिटरमिनेशन ऑफ द रेट. स्लो है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स. अपन जो रिएक्शन स्लो होती है उसी से रेट निकालते हैं. सो कॉल्ड एज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप मींस द आरडीएस. करेक्ट, आरडीएस. सेकंड थिंग, और यहां पे इसके साइलेंट फीचर्स को देखो कि SN2 रिएक्शन फेवर्स द अटैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. यहां पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वो स्ट्रॉन्ग होएगा तब ही यहां पे इस कार्बन को अटैक कर पाएगा. समझो वीक होता तो पहले इसका हेट्रोलिसिस होके यहां पे क्या तैयार हो जाता? कार्बोकटायन तैयार हो जाता. पर स्ट्रॉन्ग होने से कारणवश क्या हो जाएगा कि ये कार्बोकटायन के फॉर्मेशन की राह नहीं देखेगा. मींस नो डाउट SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का. ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच टू द कार्बन and there will be no weight of the formation of the carbocation. correct. second thing, यहां पे ये हेट्रोलिटिकली इसका फ्यूजन होता भी, हेट्रोलिटिक फ्यूजन यहां पे अपन करवाते तो स्वाभाविक है यहां पे ये तैयार होता है H मींस मिथाइल कार्बोनियम आयन. अब इस मिथाइल कार्बोनियम आयन में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कम है. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम होने के कारणवश इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी भी कम है. तो इन दिस केस ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट को तैयार नहीं कर रहा है. ठीक है, स्टेबल इंटरमीडिएट को तैयार नहीं कर रहा है, इसलिए इन दिस मैकेनिज्म देयर इज अ साइमल्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ द CBr बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द COH बॉन्ड यहां पे होगा. इसी कारणवश यहां पे OH जो है मींस इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल हमें जो लगेगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा. सेकंड थिंग, such a type of the SN2 reaction it is carried out in the polar अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए. कैसा चाहिए? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे चाहिए. अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यानी क्या? तो सॉल्वेंट में दो है, पोलर प्रोटिक. पोलर प्रोटिक मींस ऐसे सॉल्वेंट विच सॉल्वेट्स बोथ कटायंस एंड अनायंस. कटायन और अनायन को सॉल्वेशन करते हैं, घेर डालते हैं, बट द पोलर अप्रोटिक जो होगा सॉल्वेट ओनली द कटायन को सॉल्वेट करेगा. ठीक है, काय को? कटायन को सॉल्वेट करेगा. सपोज यहां पे मैं ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक में करता था तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता? इस अनायन को भी सॉल्वेट कर देता. करेक्ट. इसको सॉल्वेट करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती. स्टेबिलिटी बढ़ती तो इसको ये अटैक नहीं कर पाता. ओके, इसलिए हमें यहां सॉल्वेंट जो होगा ये कैसा लेना होगा? पोलर अप्रोटिक, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट ओनली द कटायन. अनायन को वो सॉल्वेट नहीं करता है क्योंकि उसका अनायनिक पार्ट जो होता है ये फ्री नहीं होता है ताकि वो सॉल्वेट कर पाए. ठीक है ना? ओके, सो साइलेंट फीचर्स यहां पे मैं आपको बता देता हूं. SN2 रिएक्शन के साइलेंट फीचर्स. फीचर्स ऑफ SN2. First is it is a one step mechanism है. One step mechanism है. One step mechanism means in this mechanism there is a
fission of bond and formation of bond takes place simultaneously यहाँ पे fission और formation, so it is a one step mechanism. There is a no formation of a stable intermediate यहाँ पे तैयार नहीं होने के कारणवश, सपोज यहाँ स्टेबल इंटरमीडिएट तैयार हो जाता, देन दिस मैकेनिज्म इज कैरिड आउट इन टू स्टेप में हुआ रहता है, बट इन दिस केस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल intermediate, due to which the breaking and the formation takes place simultaneously. Second is that a backside attack of nucleophile. Backside attack of the nucleophile means nucleophile bonded to the carbon opposite to that of the living group के opposite होगा. Reason to avoid the repulsion. The reason is that to avoid the repulsion between the nucleophile and the living group, steric repulsion as well as the या नेगेटिव चार्ज है as well as the electrostatic repulsion को अवॉइड करने के लिए, in this case in SN2 reaction the nucleophile attacks from the backside. Okay, attack from the backside. थर्ड इसका साइलेंट फीचर है कि in the transition state both living group and the nucleophile group partially attached to this प्राइमरी कार्बन. इस कार्बन को ये पार्शियली अटैच है, मींस पार्शियली बॉन्डेड है, पार्शियली बॉन्डेड, करेक्ट, मींस पार्शियल बॉन्ड बिटवीन लिविंग ग्रुप एंड द nucleophile and the living group, they are partially bonded to the primary carbon. चौथा साइलेंट फीचर है कि in this case the carbon atom in the transition state it is penta coordinated है. Okay, penta coordinated है. उसमें से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड है, करेक्ट, और ये तीनों सिग्मा बॉन्ड दे आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस OH CBr एक्सिस, जिसमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, 180 बॉन्ड एंगल यहाँ पे होगा. ठीक है, स्वाभाविक है इसका नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज ये पार्शियली मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा आउटगोइंग एंड इनकमिंग ग्रुप के ऊपर. सो पेंटा कोऑर्डिनेटेड. ऐसे कंडीशन में सपोज यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है मींस ये एटम्स समझो बल्कि होते तो स्वाभाविक है कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट तैयार होने में दिक्कत जाती, करेक्ट. इसलिए इट फेवर्स, ये जो फेवरेबल रहेगा इसके लिए ये फेवरेबल प्राइमरी कंडीशन फेवरेबल करेगा, मींस SN2 जो रिएक्शन है फेवर्स द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ओके, एंड नॉट फेवर्स द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को ये फेवर नहीं करेगा ताकि उसमें दिक्कत वहां पे हो सकती है. और फिफ्थ पॉइंट होगा कि इफ द कार्बन इट इज अ कायरल इन द अल्काइल हैलाइड, ओके, सपोज ये कायरल होता है तो नो डाउट देयर इज अ 100% inversion of configuration takes place. 100% inversion configuration, and it is called as the Walden inversion. These are the silent features. Okay. Second thing, it favors the polar aprotic solvent. Polar aprotic solvent को ये फेवर करेगा. सेकंड थिंग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को फेवर करेगा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN2 reaction mechanism. So these are the silent features. Okay,
यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में ये बता दिया कि मिथाइल ब्रोमाइड एंड दी OH न्यूक्लियोफाइल, बट एक्सपेरिमेंटल रेट डिटर्मिनेशन जो है मींस रेट ऑफ दिस रिएक्शन it is depend upon the concentration of this both substrate and the nucleophile, so no doubt in this case it is a second order. बट ये कैसा होगा, इसका वे कैसा होगा या इसका सीक्वेंस कैसा होगा, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि in this SN2 this breaking and formation takes place simultaneously in one state. The reason is that there is no formation of stable intermediate due to which the breaking and the formation takes place simultaneously. इसके लिए means it need the strong nucleophile जो easily उस कार्बन को अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तब अटैक करेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे सपोज ये रिएक्शन हमने पोलर प्रोटिक में किया होता तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये इसको सॉल्वेट कर लिया होता, इसको स्टेबल बना लिया होता एंड डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इट फेवर्स द क्या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करेगा, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ये अनायन को सॉल्वेट नहीं करता है, किसको करता है, ओनली एंड ओनली कटायन को सॉल्वेट करता है। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ओके